وزیراعظم عمران خان کل سے چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ 6 فروری تک جاری رہنے والے دورے میں وزیراعظم چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چین کی کاروباری شخصیات، تھنک ٹینکس اور میڈیا نمائندوں کے ساتھ ملاقات کے علاوہ ونٹر اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 28ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ان سے حلف لیا۔ تقریب میں وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی وزراء، سپریم کورٹ کے ججز، مسلح افواج کے سربراہان اور سینئر وکلاء کی شرکت۔ لندن میں مقیم نواز شریف نے واپسی کی بجائے میڈیکل رپورٹ بھجوا دی۔ واشنگٹن کے ڈاکٹر نے شدید ذہنی دباؤ قرار دے کر نواز شریف کو سفر سے روک دیا۔ 3 صفحات پر مشتمل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ جعلی رپورٹس کا مقصد پاکستان کے عدالتی نظام اور قوانین کا مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ امریکہ میں مقیم ڈاکٹر نے لندن میں بیٹھے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ تیار کی۔ عدالت ان جعلی رپورٹس کا نوٹس لے۔ نواز شریف کے پاس آسان راستہ ہے کہ وہ عوام کا پیسہ واپس کریں اور لندن میں زندگی گزاریں۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین۔ It's a huge surprise, a significant move to take direct control of the state of Kashmir. Troops, as we understand it, out on the streets. Panic has gripped many local residents. If I were to sum up August 5th in one line, I would say that it has laid foundation for another decade of conflict. Meant that Kashmir is for Kashmiris. So thinking about Article 370 and the reason it existed, we can say دنیا پر عیاں تمام تر اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود دنیا بھر کے ایوانوں اور میڈیا میں مظلوم کشمیری عوام کے حق میں آوازیں بلند۔ اقوام متحدہ اور برطانوی پارلیمان سمیت مغربی دارالحکومتوں میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم و محکوم عوام کے حق میں رائے عامہ ہموار۔ بھارت کا جنگی جنون اور توسیع پسندانہ عزائم، بھوک اور ننگ کے مارے عوام بلکتے رہ گئے اور مودی حکومت نے ہتھیار اور جنگی ساز و سامان خریدنے کے لیے 52 کھرب 50 ارب روپے جھونک دیے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو مکمل مالی اور انتظامی خود مختاری دے گی۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے پہلی بار حقیقی معنوں میں کام ہو رہا ہے۔ صنعت کاروں، تاجروں اور وکلاء کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان مشتاق۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 29 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 6047 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مثبت کیسز کی شرح 9.8% ریکارڈ۔ 1500 سے زائد کی حالت تشویشناک۔ گزشتہ روز 61,190 ٹیسٹ کیے گئے۔ NCOC۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں آج سے بارش کی پیش گوئی۔ برف باری کے ساتھ تیز ہوا اور آندھی متوقع۔ بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ That's pretty good. Last ball this over. Always. Last over. Hassan Ali. کراچی میں PSL 7 کا 8واں میچ، ملتان سلطانز کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کو 20 رنز سے ہرا دیا۔ یونائیٹڈ کی ٹیم شاداب خان کے 91 رنز کے باوجود میچ نہ جیت سکی۔ ملتان سلطانز کے 217 رنز کے جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم 197 رنز بنا کر آؤٹ۔ PSL کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ PSL 7 میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ پشاور زلمی اور لاہور قلندرز شام 7:30 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مد مقابل ہوں گے۔ دونوں ٹیموں نے اب تک 2 میچز کھیلے ہیں اور 1 میں کامیابی حاصل کی ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر لاہور قلندرز 4تھی اور پشاور زلمی 5ویں پوزیشن پر ہے۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तुम लोग ताकत हो इस औताक की, अगर मिलकर साथ खड़े रहोगे तो औताक भी तुम्हारे इत्तेहाद की वजह से मजबूत होगा। हमें बताने के लिए आपके पास ऐसी क्या खुफिया मालूमात है? बंदरगाह पर जाल बिछाऊंगा उसके लिए मैं। जब तक दुनिया नए दौर में दाखिल नहीं हो जाती, मैं इस परचम को बुलंद रखने का फर्ज निभाऊंगा इंशाअल्लाह। मशरिक की तरफ जाने वाले रास्ते में उसे मारना होगा रिपुका। इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। बरके खान को उस जासूस का नाम कभी नहीं बता सकोगे। अपनी हैसियत से बड़ी जसारत कर दी तुमने। दीमक और जहर दोनों को निकाल दूंगा। किस्मत ने इस इम्तिहान में डाल दिया तुम्हें। वक्त आ गया है, गद्दारों के सर कलम कर दिए जाएं। तुम राख हो जाओगे अरे बुका। कोई नहीं बचा जो हमारा साथ दे। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहली और अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर कल से 6 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे, जहां वो चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली कीचेंग के साथ मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, सीपैक समेत मजबूत तिजारती और इक्तसादी ताउन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दोनों ममालिक की क़यादत अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार के मुताबिक काबीना के अरकान, सरकारी अफसरान समेत आला सतह का वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। बीजिंग में वज़ीर आज़म चीन के मुमताज़ कारोबारी रहनुमाओं, सरकर्दा थिंक टैंक्स, तालीमी इदारों और मीडिया के नुमाइंदों के साथ मुलाकातों के अलावा विंटर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की क़याम की 70वीं सालगिरह की यादगारी तकरीबात का इख्तिताम होगा। दौरे में मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त हैं। वक्त के साथ साथ दोस्ती और ताउन का ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जिहत मिली है। पाकिस्तान और चीन अब सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आगा मसूद खालिद की रिपोर्ट देखिए। चीन
चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का रिश्ता मुनफरिद है। बाहमी एहतराम और एतमाद पर कायम दोनों मुल्कों की तजवीराती शराकतदारी खिते में अमन और तरक्की और इस्तेहकाम की अलामत है। आलमी तनाजुर में सूरत हाल किस कदर भी पेचीदा हो, दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। पाकिस्तान और चीन की क़यादत और अवाम के दरमियान एहतराम और मोहब्बत का ये रिश्ता मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग का बाइस बन रहा है। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद पाक चीन ताल्लुकात को नई जिहत मिली। वजीर आजम इमरान खान ने नवंबर 2018 में चीन का सरकारी दौरा किया। उनका बीजिंग में पुरतपाक इस्तकबाल दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती की अलामत था। चीनी क़यादत के साथ मुलाकात में मईशत, तिजारत, सकाफत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ। अपने मुल्क से गुर्बत के खात्मे में चीन दुनिया के लिए मिसाल है। वजीर आजम के दौरे में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के हवाले से चीन के तजर्बात से इस्तेफादे पर भी इत्तफाक हुआ। कोरोना वबा से कबल 2019 में वजीर आजम इमरान खान ने चीन का 2 बार दौरा किया। उन्होंने अप्रैल में बीजिंग में होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम और अक्टूबर में शंघाई में होने वाली चीन की पहली दरामदी नुमाइश में शिरकत की। सीपैक सदर शी चिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इकदाम का अहम जुज़्व है। इस मौके पर सीपैक मंसूबों पर मौसर अमल दरामद और नए इम्कानात का जायजा लेने पर इत्तफाक हुआ। The Karakoram Highway merges into a network of modern highways that are part of the China-Pakistan economic corridor. These take you to the deep sea port of Gwadar, the point where the belt and road converge, and this impacts not only Pakistan but has an impact on all the economies of the entire region. किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वजीर आजम इमरान खान और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में होने वाले ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना वबा की गैर मामूली सूरत हाल के दौरान बीजिंग का दौरा किया। चीनी क़यादत और अवाम ने मुश्किल की इस घड़ी में यकजहती के इजहार पर पाकिस्तान के इस इक़दाम को खूब सराहा। दोनों मुल्कों की क़यादत ने एक बार फिर एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन के अज़्म का इयादा किया। चीन सरमाई ओलंपिक्स की मेजबानी कर रहा है। चीन के साथ भरपूर यकजहती के इजहार के तौर पर वजीर आजम इमरान खान बीजिंग में होने वाली सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। इस मौके पर उनकी चीन के सदर शी जिनपिंग और दीगर चीनी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। इलाकाई और आलमी अमूर हों या सलामती और खुद मुख्तारी के मामलात, पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। दोस्ती का यही रिश्ता इन्हें दूसरी अक़वाम से मोतबर बनाता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया है। आपको बताते चलें कि हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से हलफ लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान भी तकरीब में मौजूद थे। मैं जस्टिस उमर अता बंदयाल सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। हलफ बर्दारी की तकरीब में वफाकी काबीना के अराकीन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, अरकान पार्लियामेंट, सीनियर वकला और मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 1 साल 7 माह और 15 रोज़ तक चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज रहेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। वो जून 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। बाद में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के हमरा हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक मेहमानों से मुलाकात की। मुआज़िज़ मेहमानों ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हलफ बर्दारी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जबकि अदालत उज़्मा की आमद पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के अमले ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। नाज़रीन,
नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक मुआलजीन ने उन्हें पाकिस्तान के सफ़र से इज्तनाब की हिदायत की है और मेडिकल रिपोर्ट वाशिंगटन के डॉक्टर फयाज शाल ने तैयार की है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ अपनी अहलिया के इंतकाल के बाद शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं, इसलिए इन्हें एंजियोग्राफी के बगैर पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। नवाज शरीफ अगर इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो दिल की बीमारी के बायस उनकी हालत बिगड़ भी सकती है। रिपोर्ट में कोरोना की वबा को मियां नवाज शरीफ के लिए बड़ा खतरा करार दिया गया है। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को लंदन में अपनी इलाजगाह के करीब वक्त गुजारने की हिदायत की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत पर नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी थी। नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। शरीफ खानदान जाली रिपोर्ट्स भेजने का सिलसिला बंद करे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि नवाज शरीफ के पास आसान रास्ता यही है कि वो पाकिस्तान के अवाम का पैसा वापस करें और इसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। सारी दुनिया को बताया गया कि नवाज शरीफ के डॉक्टर्स लंदन में मौजूद हैं। अब मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका के डॉक्टर से लिखवा ली गई है। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब ने अपने ट्वीट में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद नून लीग के उन तमाम रहनुमाओं के बयानात झूठ हो गए जो कह रहे थे कि मियां साहब वापस आ रहे हैं। रिपोर्ट ये बयान कर रही है कि नवाज शरीफ को जेल जाने से डर लगता है। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताते चलें कि तुर्कमेनिस्तान के नायब वजीर खारजा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की है और ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली इस मुलाकात में तापी गैस पाइपलाइन और खित्ते में रवाबित की बेहतरी के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू की। नायब वजीर खारजा ने खित्ते में इस्तेहकाम, खासतौर पर अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के लिए भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गुलमोर ने भी आर्मी चीफ से रावलपिंडी में मुलाकात की और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी गुफ्तगू हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान कनाडा के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात का ख़्वाह है। उन्होंने शिमाली इलाका जात में खेलों के फ़रोग़ के लिए कैनेडियन हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने खित्ते के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और तमाम सतह पर ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की भी यकीन दहानी कराई। कश्मीर तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, आंसू हैं तेरी आंख में, पैरों में जंजीर। आज़ादी की इस जिद्दोजहद में हम कश्मीरियों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मैं मकबूजा कश्मीर के भाइयों और बहनों को भी सलाम पेश करता हूं जो बहादुरी और कुर्बानी की एक लाजवाब तारीख रकम कर रहे हैं। जो आपने करने करी, तो you have power, you have authority, you have everything with you. You have nothing. You have nothing. नाज़रीन, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, जहां गुज़िश्ता माह में भारतीय फौजियों का जबर तसल्लुत का सिलसिला जारी रहा और इस दौरान उन्होंने 22 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। KMS के मुताबिक शहीद होने वालों में से 4 को जाली मुकाबले में शहीद किया गया, जबकि काबिज फोर्सेस की तरफ से पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 17 नौजवान शदीद जख्मी हुए।
सियासी कारकुनों, नौजवानों और तलबा समेत 45 शहरियों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से बेशतर के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले कवानीन के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। फौजियों ने सरसे के दौरान 7 मकानात को भी तबाह किया। जम्मू में मुतादिद मुसलमान खानदानों को उनकी आबाई ज़मीनों से बेदखल करने के बाद अब मोदी की फिजाई हुकूमत ने श्रीनगर के कई इलाकों में रहने वालों को अपनी ज़मीनें फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दिया है। श्रीनगर के इलाकों HMT और कमरवारी के मकामी लोगों ने इन अहकामात के खिलाफ श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एहतजाजी मुजाहरा भी किया। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारत की तमाम तर नाकाम कोशिशों और ड्रामों के बावजूद दुनिया बखूबी जान चुकी है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। आज दुनिया के ऐवानों में कश्मीरी अवाम के हक में आवाज़ें उठ रही हैं। हाल ही में बरतानवी पार्लियामान के मेंबरान ने खुलकर भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के हक में आवाज़ उठाई। बरतानवी पार्लियामान के अरकान ने मकबूजा कश्मीर में जारी कत्लेआम और औरतों पर जिंदगी तशद्दुद के वाक़यात की भरपूर मजम्मत की। अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि 70 साल से ज़ायद अरसे से कश्मीरी एक जहन्नम में रह रहे हैं और आज हक खुद इरादियत तो दरकरार, उनका अपना वजूद ख़तरे में पड़ गया है। EU डिसइंफोलैब की चश्मकुशा रिपोर्ट ने भारत के आलमगीर प्रोपेगेंडे को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने इस बात पर जोर दिया कि मसला कश्मीर का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी किस्म की महाज आराई के नताइज खित्ते और दुनिया के लिए बेहद तबाहकुन होंगे। यूरोपीय यूनियन को आलमी बरादरी के जरिए कश्मीरियों से किए गए वादों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। भारत और पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाना होगा। नाज़रीन, भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम को पूरा करने के लिए मोदी की फस्ताई हुकूमत ने माली साल 2022-23 के दिफाई बजट में इजाफा करके 5,250 अरब रुपए मुख्तस किए, जबकि गुज़िश्ता साल के बजट में दिफा के लिए 4,860 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। बजट में माली अखराजात के लिए कुल 1,523 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से नए हथियारों, हवाई जहाज़ों, जंगी जहाज़ों और दीगर फौजी साजो सामान की खरीदारी शामिल है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक दीगर अखराजात के लिए 2,330 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें तनख्वाहों की अदायगी और इदारों की देखभाल के अखराजात शामिल हैं। इसके अलावा साबिक फौजियों की पेंशन के लिए 1,196 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि वजारत दिफा के लिए 201 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और नाज़रीन, नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत सेकुलरिज्म के अपने मकरूह चेहरे की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जुल्म और इस्तबदाद की इंतहाएं पार कर चुकी है। भारत के सेकुलर चेहरे और बर्बरियत की काली रातों का अहवाल हमारे नुमाइंदे सादिक बलोच की इस रिपोर्ट में जानिए। सवा अरब से जायद आबादी, नाम नहाद सेकुलर आइन और अकलियतों के लिए अजाब बनी धरती जिसे भारत कहते हैं। गांधी के इस देश में हिंदुत्व का राज है। करोड़ों मुसलमान, सिख और ईसाई भारतीय मुआशरे के बदबूदार निज़ाम में अपने हुकूक के लिए सिसक रहे हैं, मगर दुनिया की नाम नहाद बड़ी जमहूरियत सेकुलर नकाब में घुनौना चेहरा छुपाए गैर कानूनी कब्जा में लिए कश्मीर में जुल्म व जबर की काली रात को तवालत देकर मासूम कश्मीरियों को रौंद रही है। एक तरफ भारत में मसाजिद और चर्च जनूनी हिंदू बलवाइयों के हमलों से महफूज नहीं, तो दूसरी तरफ कश्मीर में कासिब फौजी ताकत के बलबूते पर निहत्ते कश्मीरियों की जिंदगियां, अमलाक और आज़ादी कुचल रहे हैं। मकबूजा वादी में शोहदा के कब्रिस्तानों में तदफीन की जगह नहीं, लाखों शहीद, हज़ारों माजूर, औरतें बेवा हैं और बच्चे यतीम हो चुके। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो चुका। गुमनाम कब्रों की बढ़ती तादाद सेकुलर भारत के चेहरे पर बढ़ती कालक का पता दे रही है। जिस तरह नरेंद्र मोदी के दोनों अदवार में मजहबी अकलियतों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, वो सबके सामने है। कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कन्वर्ट हो चुका है। जो सिख हैं, छोटी ज़ात के हिंदू हैं, मुसलमान हैं और इसी तरह जो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, वो भी अब दुनिया के सामने है। 72 साल से मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म की तवील रात पर आलमी बरादरी की बेहिसी कश्मीरियों के लिए सवालिया निशान है। अरबों की अमलाक कारोबार तबाह हो चुके, तालीम रुक चुकी और ज़िंदगी सिसक रही है। लवाहिकीन को लाशें नहीं मिलते और शुहदा को कब्रें नहीं मिलती, मगर ढोंग
और ढकोसले से बनी नाम नहाद सेकुलर भारत पहचान अपने काले कवानीन से कब तक अज़्म आज़ादी की राहें रोक सकेगी। कश्मीर इशू तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। 7 दहाइयों से जारी जुल्म जबर की रात ख़त्म होने वाली है और पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हमेशा की तरह मौजूद है। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, भारतीय मज़ालिम का शिकार निहत्ते कश्मीरी अवाम के साथ 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा और अपने लहू से आज़ादी की शम्मा रोशन करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। यासिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। तेरा हुस्न हुआ दर्द की तस्वीर, यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मकबूजा कश्मीर में जारी गैर इंसानी लॉकडाउन को 915 दिन मुकम्मल। आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीरी अवाम के तमाम तर बुनियादी हकूक छीन लिए गए हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से कश्मीरियों की आवाज को दबाने और तहरीक आज़ादी को कुचलने की गर्ज से भारत की दहशतगर्द रियासत ने अवाम के हकूक सलब कर लिए, जिसके तहत जमीन की खरीदो फरोख्त और मलकियत में हिस्सेदारी भारतीय हिंदुओं को मिल गई है। आज दुनिया के हर कोने से कश्मीरी अवाम के हक में आवाजें उठ रही हैं। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट समझा जाता है। मोदी सरकार की फाशिस्ट पॉलिसियां दुनिया भर में बेनकाब हो चुकी हैं। इंतशार और खलफशार का दूसरा नाम मोदी सरकार है। कश्मीर और पंजाब समेत भारत के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी की आवाजें बुलंद हो रही हैं। हजारों शहादतों, इस्मत दरी के वाक़यात और बेनाम इज्तमाई कब्रों के इंकशाफात के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी रोज़े रोशन की तरह अय्यां है। कर्फ्यू के दौरान इंटरनेट समेत दीगर बुनियादी सहूलतों से कश्मीरी अवाम को महरूम रखा गया। 5 फरवरी इस अज़्म की तजदीद का दिन है कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। आज़ादी कश्मीर की तहरीक जरूर कामयाब होगी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ मुनाफरत पर मबनी मुहिम को सरकारी सतह पर भी हिमायत हासिल है। सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी ने मुसलमानों के इस्तेहसाल को अपने मंशूर का हिस्सा बना रखा है। वकार हैदर की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात तो आम हैं, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुआशी, समाजी और तालीमी तौर पर भी इस्तेहसाल किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, जहां मुसलमानों की आबादी 23% है, जिसमें 40.83% मुसलमान नाखानदा हैं। हालांकि इस रियासत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद, नुदवतुल उलमा लखनऊ, जामिअतुल फलाह, अल्लामा शिबली का दारुल मुसफ़्फ़ीन और शिबली कॉलेज वगैरह जैसे तालीमी इदारे मौजूद हैं। सिर्फ 4.4% मुसलमान ही यूनिवर्सिटी की सतह की तालीम हासिल कर पाते हैं। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2015 में 521 उम्मीदवारों का इंतखाब किया, जिनमें फकत 19 यानी 3.65% मुसलमान थे। सूबे की यूनिवर्सिटियों में 1834 असातिज़ा की भर्ती की गई, उनमें सिर्फ 57 मुसलमान थे। यूपी में मुसलमानों की इक्तिसादी, तालीमी और समाजी हालत के बारे में 76 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट है, जिसका उन्वान है उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का तरक्याती दौड़ में मकाम और पॉलिसी मुज़मरात। इसके मुताबिक बाकायदा या मुनज़्ज़म रोजगार में मुसलमानों का तनासुब 25.6% है। मुसलमानों का हर 5वां खानदान गरीब तरीन तबके से ताल्लुक रखता है और फी कस माहाना आमदनी 752 रुपए है। बेरोजगारी की शरह के लिहाज से मुसलमानों में 2018-19 में 9.95% का इजाफा हुआ है। ये वो कारनामे हैं जिस पर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बड़ी डिटाई से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और इस पर यूपी के रहने वाले कहते हैं, पहले मुसलमानों की खूब नाजबरदारी हो रही थी, जिसे योगी जी ने आकर खत्म किया है और सब हिंदू मुसलमानों के इस्तेसाल पर खुश हैं। वकार हैदर, पीटीवी न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारत की रियासत आंध्र प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मंसूब जिन्ना टावर को बाबरी मस्जिद की तरह मुनहदम करने की धमकी दी है। हिंदुत्व ताकतों की जानिब से जिन्ना टावर को मुतनाज़ करार देते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान चंद शरपसंदों ने जिन्ना टावर पर भारतीय झंडा लहराने की कोशिश की,
जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। हुकाम ने मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के साथ इत्तफाक राय से जिनाह टॉवर को भारतीय झंडे के रंगों से रंग दिया है ताकि हिंदू इंतहा पसंद इसे गिराने से बाज रहें। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सर्किट हाउस डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की हैं। इनमें डेरा गाजी खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डेरा गाजी खान बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स और PTI के वफूद शामिल थे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सनतकारों, ताजिर बरादरी और वकला बरादरी के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हमने अवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया है। पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए पहली बार हकीकी मानों में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनूबी सेक्रेटेरिएट को मुकम्मल इंतजामी और माली खुद मुख्तारी दे दी है। अब जनूबी पंजाब के शहरियों को काम के लिए लाहौर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जनूबी पंजाब के फंड्स उसी इलाके पर खर्च हो रहे हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PIA बिजनेस प्लान का जायजा लेने के लिए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत में इस्लामाबाद में इजलास में याता हुकाम ने PIA बिजनेस प्लान 2022 से 2026 के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि PIA एक कौमी इदारा है जिसे आलमी मयार की एयरलाइन बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने PIA कारोबारी मंसूबे में बेहतरीन कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्ट परवाज़ों को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। गवर्नर हाउस कोयटा में लसबेला यूनिवर्सिटी और मैपल सोलर सॉल्यूशंस के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर गवर्नर सैयद ज़हूर अहमद आगा ने कहा कि बलूचिस्तान में आला तालीम के फ़रोग़ और सूबे के नौजवानों को दौरे असर के तकाज़ों से आहमाहंग करने के लिए जामियात को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है और इसके लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। तकरीब में लसबेला यूनिवर्सिटी की जानिब से प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जलाल फैज़ और मेपल सोलर सोल्यूशन के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट सरदार ज़ादा औरंगज़ेब खेतरान ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। बात करेंगे कोविड सिचुएशन की। आपको आगाह करें कि मुल्क भर में कोरोना के फैलाव में तेजी आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे में 61,190 टेस्ट किए गए, जिनमें से 6,047 मुस्बत रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 9.88% रही। गुज़श्ता रोज़ वबा से मुतासरा मजीद 29 अफराद जान बहक हुए, जिसके बाद मुल्क में कुल अमवात की तादाद 29,330 हो गई है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना वायरस के 1559 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब मुल्क भर में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीन लगाने का अमल भरपूर अंदाज से जारी है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 12,54,000 से ज़ायद, जबकि मजमूई तौर पर अब तक 17,74,00,000 से ज़ायद वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। अब तक कुल आबादी के 36%, जबकि अहल आबादी के 54% अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी NCOC की हिदायत के तहत कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद तेज कर दिया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब की जानिब से हर दरवाजे तक पहुंचने की खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक पद से मजीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे। हसन, हमें मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी के इलाके सेंटर टाउन के अंदर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की जानिब से जो है एक फिक्स्ड जो है वैक्सीनेशन पॉइंट बनाया गया है। इस तरह के कुल तकरीबन 550 फिक्स पॉइंट्स हैं जो रावलपिंडी रीजन में है। इसके साथ जो अटैच्ड हैं वो तकरीबन 2000 के करीब आउटरीच टीम्स हैं जो घरों में जाकर बेलें बजा के वहाँ पर उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि उनके करीब ही जो है वो ये फिक्स पॉइंट बनाया गया है। इसका मकसद यही है कि जो हुकूमत पंजाब की जानिब से रीच एवरी डोर के नाम से, यानी हर दरवाजे तक पहुँचने के नाम से जो एक मुहिम का आगाज़ किया गया है, जिसका मकसद यही है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव को मजीद तेज किया जा सके, कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को जो है वो बूस्टर डोज लगवाई जा सके, ताकि जो एक हर्ड इम्यूनिटी है, हम देख रहे हैं कि जो ओमिक्रॉन के जिस तरह के केसेस प्रॉप अप हो रहे हैं, उसकी वजह से जो ये वबा के अंदर जो तेज़ी भी आ गई है, उसको जो है वो जो मुकाबला किया जा सके, उसको रोका जा सके। तो जैसा कि मैंने कहा कि तकरीबन 2000 के करीब जो है आउटरीच टीम्स हैं, इसके अंदर ऑलमोस्ट 5,500-6 हज़ार के करीब जो पर्सनल है वो डिप्यूटेड हैं, जो मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर, स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर, डिफरेंट दफातर के अंदर जाके लोगों को आगाह कर रहे हैं कि उनके करीब स्टेशन बनाया गया है ताकि वो यहाँ पर आके अपनी बूस्टर डोज लगवा सकें। जी
اچھا حسن، جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹیمز جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں، ڈیفرنٹ سیکشنز بنائے گئے ہیں، تو کس طرح سے مینج کیا جائے گا؟ کون سے علاقے ہیں جہاں سے اس کا آغاز کیا جائے گا اور پھر کس طرح سے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا اس سارے پروسیس کو؟ جی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. راولپنڈی کے اندر جو یونین کونسل ہے اس کی سطح پر اس کو جو ہے وہ سارے کا سارا فارمولیٹ کیا گیا ہے اس اسٹریٹجی کو. اس ڈیزائن کے اندر جو آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں وہ یونین کونسلز کے اندر تقسیم کر کے ہر یونین کونسل کے اندر جو ہے جس طرح کہ میرے پیچھے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس طرح کے فکس پوائنٹس بنائے گئے ہیں ہر امپورٹنٹ محلے کے اندر. جس طرح ابھی یہاں پر بھی ہے آلموسٹ 10 قدم کے فاصلے پر ایک اور فکس پوائنٹ بنایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں جس کے اندر خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں. وہ ڈفرنٹ گھروں کے اندر جا رہی ہیں, بیلے بجا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کے قریب ہی جو ہے وہ اس طرح جو یہ بوسٹر ڈوز کے لیے اسٹیشن بنائے گئے ہیں. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ فیملیز آ بھی رہی ہیں, لوگ آ بھی رہے ہیں اپنی کنوینئنس کو سامنے رکھتے, اپنے ٹائم کو سامنے رکھ کے. اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہو گیا کہ ان کو ان کے گھر کے قریب جو ہے وہ یہ فیسلٹی مل گئی ہے. اور اس سے آئی ایم شیور اور مکمل امید ہے کہ اس سے ویکسینیشن ڈرائیو کے اندر جو ہے وہ خاطر خواہ تیزی آئے گی. جی اچھا حسن, یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک اس مہم میں کتنے مراکز قائم کیے جا چکے ہیں, اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان میں سے بوسٹر ڈوزز لگائی جا رہی ہیں یا دوسری ڈوزز یا تیسری ڈوزز بھی لگائی جا رہی ہیں؟ جی بالکل, اس میں جو ریگولر جو ڈوزز ہیں وہ بھی لگ رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈوزز بھی جو بوسٹر ڈوزز ہیں وہ بھی لگائی جا رہی ہیں. جو آنے والے افراد ہیں ان کا آئی ڈی کارڈ دیکھا جاتا ہے, وہیں پر ہی سیل فون کے ذریعے انٹری کی جاتی ہے اور ان کا جو ڈیٹا ہے وہ سسٹم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور وہیں پر چیک ہو جاتا ہے کہ وہ بوسٹر کے لیے اہل ہے کہ نہیں. تو جن لوگوں کے 6 مہینے پورے ہو چکے ہوتے ہیں ان کو وہیں پر جو ہے وہ بوسٹر بھی جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. اس قسم کے آلموسٹ تقریباً 550-600 کے قریب جو یہ فکس پوائنٹس ہے راولپنڈی ڈویژن میں جو ہے راولپنڈی سٹی کے اندر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. اور جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آلموسٹ 2000 کے قریب جو ہیں وہ آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں, جس میں تقریباً 5,500-6,000 کے قریب جو ہے وہ پرسنل ڈپیوٹر ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ حسن طارق بٹ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے راولپنڈی سے. ناظرین, راولپنڈی کے بعد آپ کو لیے چلیں گے لاہور, جہاں پنجاب کے مختلف اضلاع میں گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کی مہم جاری ہے. ہماری نمائندہ ہما صدف اس وقت لاہور کے ایک اسکول میں موجود ہیں جہاں ویکسین کا عمل جاری ہے, ان سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں. ہما بتائیے گا. پنجاب میں تو ریچ ایوری ڈور مہم کے تحت یہ تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے کہ گھر کی دہلیز پر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کرونا ویکسین لگائی جائے. فیڈرل گورنمنٹ NCOC کی ہدایت پر پورے ملک میں یہ سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے اور 12 سال سے زائد عمر کے تمام بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے, فری آف کاسٹ لگائی جا رہی ہے. مگر اس کے لیے بچوں کو بھی اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے, والدین کو بھی, اور اسکولوں کا تعاون بھی ہو, تبھی یہ سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو سکتا ہے. بیٹے, آپ نے ویکسین لگوائی ہے؟ ہاں جی, میں نے لگوائی ہے. کیوں لگوائی؟ سیف رہنے کے لیے کرونا سے. بہت اچھی بات ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ سیف رہنے کے لیے ویکسین لگوائی جاتی ہے. یہ اگر ہم دیکھ سکیں تو اس وقت یہ محکمہ صحت کی ٹیم ہے, یہ یہاں پر ویکسینیشن کا کام کر رہے ہیں. یہ سارے بچے اپنا بے فارم لے کر کھڑے ہوئے, جس طرح کے بڑے آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں اسی طرح یہ بچے اپنا بے فارم دکھاتے ہیں اور بے فارم کا اندراج ہوتا ہے تاکہ اس کے بعد ان کا ریکارڈ مینٹین کیا جا سکے. بہت شکریہ ہما, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی. ناظرین, آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ میں بھی کورونا سے بچاؤ کی قومی ویکسینیشن مہم جاری ہے اور شہریوں کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے سہولت ان کے گھر پر مہیا کی جا رہی ہے. تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندہ نورین آصف سے. نورین, تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی, کرونا وبا سے بچاؤ کی قومی مہم کا آغاز ہو چکا ہے. 1 فروری سے لے کے 14 فروری تک یہ مہم جاری رہے گی. اس میں گھر گھر جا کر لوگوں کو ویکسینیشن کی جائے گی. جن لوگوں نے اب تک کرونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن نہیں کروائی ان کو یہ سہولت مہیا کی جا رہی ہے. ویکسینیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, احتیاطی تدابیر اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن کا عمل بھی بہت ضروری ہے تاکہ کرونا وبا سے بچا جا سکے اور جلد از جلد اس پہ قابو پایا جا سکے. اس کے لیے سندھ بھر میں 10,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو ہیلتھ پروفیشنلز پر مشتمل ہیں اور وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو یہ سہولت مہیا کر رہے ہیں. یہ سہولت ان کے گھر پر کے قریب بلکہ ان کے دروازے پر یہ سہولت مہیا کی جا رہی ہے تاکہ بآسانی وہ اس سہولت سے مستفید ہو سکیں. جی بہت شکریہ نورین آصف. ناظرین, اب رخ کریں گے خیبر پختونخوا کا, جس کے 14 اضلاع میں گھر گھر کرونا ویکسینیشن کی 14 روزہ مہم بھرپور انداز سے جاری ہے. ویکسینیشن مہم کے بارے میں مزید جانتے ہیں پشاور میں موجود ہمارے رپورٹر محمد سجاد سے. سجاد, ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، خیبر پختونخوا کے 14 اضلاع میں کرونا ویکسینیشن کا جو 14 روزہ مہم ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج دوسرا روز ہے، مہم بھرپور انداز سے جاری ہے۔ جو ہیلتھ ورکر ہے وہ گھر گھر جا کر اور جو سکولز ہے وہاں جا کر بچوں 12 سال اور اس سے زائد جو عمر کے افراد ہیں ان کو کرونا ویکسین کی جن کو پہلی ڈوز نہیں لگی ہے اس کو پہلی ڈوز اور دوسری اور ساتھ ہی بوسٹر ڈوز بھی لگایا جا رہا ہے۔ محکمہ ہیلتھ خیبر پختونخوا کے مطابق صوبے میں جو کرونا ویکسینیشن کی جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے ان کے مطابق صوبے کے 90% افراد کو اس مہم کے دوران کرونا کی کم از کم پہلی ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح روزانہ کے حساب سے 5 لاکھ افراد کو کرونا ویکسین لگانے کا ہدف رکھا گیا ہے، جس کے لیے بھرپور انداز سے مہم جاری ہے۔ جو ہیلتھ ورکر ہے وہ گھر گھر جا کر متعلقہ افراد کو کرونا ویکسین لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ اسکولوں میں بھی بچوں کو ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ سجاد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کی صورتحال سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، آپ کچھ نظر ڈالیں گے عالمی منظرنامے پر۔ آپ کو بتائیں کہ عالمی سطح پر کرونا کے وار جاری ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دنیا بھر میں 28 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 10,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ فرانس میں ایک دن میں 4 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، امریکہ میں 2,32,000، برازیل میں 1,71,000، جبکہ بھارت میں 1,58,000 سے زیادہ کرونا کے نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ اٹلی نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ایک بار پھر پابندیاں سخت کر دی ہیں اور ویکسینیشن کے بغیر افراد کو مختلف سہولتوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اٹلی نے 50 سال سے زائد عمر کے تمام افراد کے لیے ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق فائزر اور جرمنی کے بایو این ٹیک نے گزشتہ روز امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA کو 6 ماہ سے 5 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ویکسین کی ہنگامی طور پر استعمال کی اجازت کے لیے درخواست جمع کرائی ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے کرونا وائرس کی ویکسین فروری کے آخر میں دستیاب ہوگی۔ بھارت میں ہندوؤں کے ایک بڑے اجتماع نے الہ آباد میں مذہبی تہوار منایا۔ مقامی پولیس کے مطابق 40 لاکھ سے زائد ہندوؤں نے اس تقریب میں حصہ لیا اور کرونا SOPs کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کے کہنے کے باوجود ماسک اور سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا۔ کچھ خبریں شامل کریں گے بین الاقوامی منظرنامے سے۔ آپ کو بتائیں کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ ہمیں جنگ میں گھسیٹنے کے لیے یوکرین کا استعمال کر رہا ہے۔ صدر پوٹن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ روس کے بنیادی تحفظات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس اب بھی اپنے مطالبات پر امریکہ اور نیٹو کے اس رد عمل کا جائزہ لے رہا ہے جو گزشتہ ہفتے موصول ہوا۔ دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بتایا کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے منگل کے روز اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے گفتگو کرتے ہوئے روس پر زور دیا کہ وہ یوکرین کی مشرقی سرحد پر سے اپنے فوجی ہٹا کر کشیدگی میں کمی لائے۔ بلنکن نے واضح کیا کہ اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس پر سخت ترین پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ اسی دوران برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے کیف پہنچے ہیں۔ بورس جانسن نے ایک بیان میں کہا کہ ہم روس پر زور دیتے ہیں کہ وہ مزید خون خرابے سے بچنے کے لیے مذاکرات کا حصہ بنے اور مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرے۔ ناظرین، روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر یوکرین کی فوج نے ملحقہ کرائمیا کی سرحد سے متصل جنوبی کھیرسن کے علاقے میں فوجی مشقیں کی ہیں اور مشق کے دوران ایک خودکار متعدد راکٹ لانچر سسٹم کو استعمال کیا گیا جو سوویت یونین میں ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ BM-27 اوریگان نامی راکٹ لانچر سسٹم 220 ملی میٹر راکٹ لانچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یوکرائن کی مسلح افواج تقریباً 2.5 لاکھ اہلکاروں پر مشتمل ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ افغانستان کی کابینہ نے پاکستان اور افغانستان کے مابین بس سروس کی منظوری دے دی ہے، اور یہ مسافر بس سروس جلال آباد سے پشاور اور قندھار سے کوئٹہ کے درمیان چلے گی۔ افغان کابینہ نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بس سروس کے آغاز کے لیے جلد ضروری اقدامات کریں۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے نومبر میں اسلام آباد کے دورے میں بس سروس چلانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف نسل پرستی کا مرتکب ہو رہا ہے اور برطانیہ سمیت مختلف ملکوں کو لازمی طور پر چاہیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کریں۔ تنظیم نے اپنی تفصیلی رپورٹ میں کہا ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کم تر درجے کے نسلی گروپ والا سلوک کیا جا رہا ہے اور انہیں منظم طریقے سے حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کو علیحدگی، بے دخلی اور اخراج کی ظالمانہ پالیسیوں کے ساتھ زندہ رہنے پر مجبور کر دیا گیا ہے، جو انسانیت کے خلاف جرائم کے مترادف ہے۔ فلسطینیوں نے اس رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اسے جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے۔ قومی خبروں کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ شوکت طرین کا کہنا ہے کہ ٹیکس دائرہ کار میں اضافے کے ساتھ ایف پی آر کو خودکار بنایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں آٹومیشن آف کرنسی ڈکلیریشن سسٹم کی افتتاحی تقریب میں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ایف پی آر کو مکمل آٹومیٹڈ کیا جائے۔ رپورٹ کریں گے راہیل انصار۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمیں ٹیکس وصولیوں اور زر مبادلہ کے شعبے میں ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا۔ حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے اصلاحات لا رہے ہیں۔ نئے نظام سے کرنسی کی سمگلنگ روکنے میں مدد ملے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے غیر ضروری طور پر غیر ملکی کرنسی کو باہر لے جانے کے لیے کھول دیا تھا، جس کے نتیجے میں لاکھوں ڈالر ملک سے باہر لے جائے گئے، حالانکہ ملک میں اس کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ان تمام مسائل کو درست کرنا ہے۔ اس وقت جو ہمارے جو ٹیکسیشن ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ہمارے لیے، اور دوسرا ہمارے لیے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے فارن ایکسچینج۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، اس میں ہم نے ترقی کرنی ہے، آگے جانا ہے۔ ہماری ٹرانسفر پرائسنگ ہو رہی ہے پیٹرولیم میں، ادر پروڈکٹس میں، بلینز آف روپیز جو ہے وہ ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ کئی چیزیں ابھی پکڑی جا رہی ہیں، اس کو ہم آٹومیشن کے تھرو ہی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اوور انوائسنگ، انڈر انوائسنگ ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے لیے رہا ہے کہ سامان چائنا سے آ رہا ہے اور انوائسنگ دبئی سے ہو رہی ہے۔ ہم اس میں انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کسٹم میں بھی سنگل ونڈو سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ہم ملک کی ترقی کے لیے پرعزم ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے بہت آگے جانا ہے۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے نئے نظام کا افتتاح بھی کیا۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے شہریوں کو جدید سہولتوں کی فراہمی کے لیے اقدامات جاری ہیں، جبکہ ضلع حمزہ کے دور افتادہ گاؤں شمشال میں 4G سروس فراہم کر دی گئی ہے۔ عاصم رضوان کی رپورٹ دیکھیے۔ یہ جو ڈیوائس ہمیں پرووائڈ کیا ہے یہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے۔ ڈائریکٹ انٹرنیٹ کا مشین ہمیں لایا، ہم ڈائریکٹ ادھر ہی اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں شہری سہولیات کی فراہمی کے اقدامات جاری۔ پاکستان کے سب سے زیادہ بلندی پر واقع شمشال گاؤں میں مواصلاتی انقلاب برپا۔ ایس سی او نے شمشال گاؤں کو 4G سروسز کے ذریعے دنیا سے جوڑ دیا۔ شاہراہ کراکرم سے 55 کلومیٹر دور شمشال گاؤں 11,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ شمشال گاؤں کے مکینوں کو مواصلاتی رابطے اور طبی سہولیات کے لیے 5 گھنٹوں کی مسافت طے کر کے ہنزا جانا پڑتا تھا۔ 4G سروسز کی سہولت فراہم ہونے سے شمشال گاؤں کے عوام کا ہر وقت ہر کسی سے رابطہ قائم۔ 4G کی مدد سے دور دراز گاؤں کے طلباء انٹرنیٹ ایجوکیشن سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایس سی او نے 4G کے ذریعے آسان شفا ٹیلی میڈیسن کی بڑی سہولت بھی فراہم کر دی۔ ٹیلی میڈیسن سے شمشال گاؤں کے باسیوں کی پاکستان بھر کے 6,000 ڈاکٹروں تک رسائی ممکن ہو گئی ہے۔ اب مقامی آبادی ماہر ڈاکٹروں سے فوری طبی مشورے گھر بیٹھے حاصل کر سکے گی۔ شمشال گاؤں کی آبادی پہلی مرتبہ 21ویں صدی کی سہولت ملنے پر خوش۔ شمشال گاؤں کے عوام نے زندگی آرام دہ بنانے کی کوششوں پر ایس سی او کو سراہا۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سی پیک میں شامل تھرکول بلاک 1 میں 145 میٹر کھدائی کے بعد کوئلہ نکل آیا۔ سائٹ پر پاکستانی انتظامیہ اور چینی ماہرین نے جشن منایا ہے۔ اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے شیراز علی ڈاہری۔ تھرکول بلاک 1 پاکستان کی سب سے بڑی کوئلے کی کان ہے، جس میں ماہرین کے مطابق 3 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ سی پیک کے تحت EHP ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ میں شامل اس منصوبے پر حکومت پاکستان اور چین کی حکومت جوائنٹ انرجی ورکنگ کے تحت کام کر رہی ہے۔ ماہر انجینئرز کی دن رات محنت کے نتیجے میں 2 سال کے قلیل عرصے میں 145 میٹر کھدائی کی گئی، جس کے بعد زیر زمین لینگ نائٹ کوئلے کی پہلی سطح ظاہر ہوئی، جہاں سے اب کوئلہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ مائن سائز ہے، کیپیسٹی اس کی ہے 78 لاکھ ٹن سالانہ کوئلہ نکالیں گے ہم، اور یہ تقریباً $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک پاور پلانٹ لگا رہے ہیں۔ پاور پلانٹ میں تقریباً 2000 کے قریب چائنیز ہیں اور 2000 کے قریب ہی پاکستانی ہیں۔ Our Block 1 is a major CPEC project. SSIR developed Pakistani's largest coal mining. Big milestone in Pakistan's goal of achieving energy security, cheaper electricity, and economic security.
पहले मरहले में थर कोल ब्लॉक 1 से सालाना 7.8 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा, जो कि थर में कायम बिजली घर में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे पहले थर कोल ब्लॉक 2 से भी कोयला निकाला जा रहा है और इस कोयले से बिजली पैदा करके नेशनल ग्रिड में शामिल की जा रही है। थर कोल ब्लॉक 1 में कामयाब माइनिंग से खित्ते में तिजारती व इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी समेत रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे, जबकि ये मंसूबा मुल्क में तवानाई की जरूरियात पूरा करने में भी मददगार साबित होगा। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, थरपारकर। नाज़रीन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुतवक्के बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है, जबकि सूबाई और ज़िले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बर वक्त और पेशगी इक़दामात के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं, ताकि जानी और माली नुकसान से बचाव यकीनी बनाया जा सके। मुतालिका इदारों को मुसाफिरों और सयाहों को मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुसलसल मुतला रखने की हिदायत भी की गई है।